Hello students, myself Professor Anand Giretkar, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn Unit 1 Introduction to Irrigation and Hydrology and topic are 1.1 in Water Resources Engineering. Now in this session learning outcomes are means after completion of this video lecture the student will be able to justify the need of irrigation for the given area, classify the irrigation project on the basis of given condition, describe the advantages and ill effects of the irrigation in the given situation, describe the ill effects of excess irrigation in the given situation. Now introduction to irrigation. Dear students, you all are aware that water is life. Means without water we can't do anything. जल ही जीवन है और बिना पानी से हम कुछ भी नहीं कर सकते. You know water is very important resources for human life, required for drinking, cooking, bathing etc. in daily life. यानी डेली लाइफ में मानव को पानी की ज़रूरत पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Similarly, water also be used for plants, animals, crops and all living things. In this subject, specially we learn water required for crops or farming. आप सभी जानते हैं कि अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है. India is basically an agriculture country. So, the only source of water is rain, which fulfill this demand. पानी की डिमांड सिर्फ बारिश से ही पूरी होती है. इन आवर इंडिया वी गॉट वाटर फ्रॉम रेन इन रेनी सीजन. करंटली रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, बट ड्यू टू इनबैलेंस इन्वायरमेंट बाय कटिंग ट्रीज फॉर डेवलपमेंट्स, deforestation etc., rain is not faithful. Sometimes more rainfall or sometimes no rainfall. Somewhere it falls more and somewhere less. कभी ज़्यादा बारिश होती है और कभी कुछ भी नहीं, या कई जगह पे बारिश होती है या कहीं पर कम होती है. To overcome these difficulties there is need of implementing various methods and measures टू स्टोर वाटर. इस टाइप की कठिनाइयों का मुकाबला करने हेतु इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड. देयरफॉर द फॉलोइंग फैक्टर नेसेसाइट इरिगेशन. यानी इरिगेशन की ज़रूरत है. इन एडिक्वेट रेनफॉल और लेस रेनफॉल मीन्स व्हेन द टोटल रेनफॉल इज लेस देन नीडेड फॉर द क्रॉप, आर्टिफिशियली supplying of water is necessary. Then uneven distribution of rainfall or non-uniform rainfall. By the collection of water during the excess rainfall period, water may be supplied to the crop during the period when there may be no rainfall. Then next is the to increase yield of crop, बेहतर फसलें उगाना. ग्रोविंग सुपेरियर क्रॉप्स, सूखे के खिलाफ बीमा कराना. इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, सूखे के खिलाफ बीमा कराना. ग्रोविंग सुपेरियर क्रॉप्स मीन्स बेहतर फसलें उगाना आर द नेसेसिटीज ऑफ इरिगेशन. देन व्हाट इज इरिगेशन. इरिगेशन मतलब क्या होता है एंड इट्स क्लासिफिकेशन. उसका क्लासिफिकेशन यानी विभाजन कैसे होता है. सो इरिगेशन में बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर राइजिंग क्रॉप्स. मीन्स इरिगेशन इज डिफाइन एज आर्टिफिशियली सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट. यानी फसल के ज़रूरत के अनुसार कृत्रिम पानी को सप्लाई करना मतलब इरिगेशन. देन क्लासिफिकेशन.
विभाजन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, मतलब कौन से उद्देश्य से वह प्रोजेक्ट बनाया है। फर्स्ट इज द सिंगल पर्पज, द प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर सिंगल यूज ओनली इज नोन एज सिंगल पर्पज, यानी सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए अगर उस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होता है तो सिंगल पर्पज, यानी सिर्फ पीने के पानी के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या हाइड्रोपावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी निर्माण हेतु या सिर्फ खेती के लिए यानी इरिगेशन पर्पज। देन मल्टीपर्पज मीन्स project can be constructed for more purposes, means for drinking supply water and irrigation, or irrigation, drinking water supply and hydropower electricity generation, यानी सभी प्रकार के उद्देश्य के लिए अगर कोई एक ही प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोसेखुर्द project is constructed for irrigation, hydropower generation and also drinking water supply. So Gosekhurd project is a multi-purpose project, and Koyna project constructed for generation hydropower electricity only. Hence Koyna project is a single purpose project. Again, project can be classified as major project, मीडियम प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, बड़ा प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प, छोटा प्रकल्प। इन मेजर प्रोजेक्ट, इफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 5 करोड़ और अबव 5 करोड़ एंड इफ CCA कल्चरेबल कमांड एरिया इज मोर देन 10,000 हेक्टर, it is known as major project. And in medium project, if estimated cost is in between 5 crore to 25 lakhs and CCA cultivable command area between 2000 to 10,000 hectare, and in minor project estimated cost of project will be below 25 lakhs and CCA less than 2000 hectares is known as the minor project. For example, Bhakra Nangal in Punjab, Gosekhurd in Vidarbha, Nagarjuna Sagar projects are major projects, and Gangapur stage 1 and 2, Bor phase 1, Musi are medium project. Then on the basis of surface, first is the surface irrigation. Surface irrigation means supplying of water to the crop on the land surface only is surface irrigation. Then subsurface irrigation, in this method water is supplied below the ground surface, that is directly in root zone of crops. Next is the overhead irrigation, means supplying of water above the ground surface. For example, sprinkler irrigation is the overhead irrigation. Are the classification on the basis of purposes and on the basis of surface. Then next is the advantages and disadvantages of irrigation. Irrigation के फायदे और नुकसान. Then first we see the advantages. First advantage of irrigation is protection from famine. Means by supplying water and fulfilling requirements of people during scarcity and thus protect peoples from famine. जब भी अकाल होता है तो अकाल के दौरान लोगों को वाटर सप्लाई करके उनकी जान बचाना, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन. आप जानते होंगे महाराष्ट्र में अकोला सिटी हर वक्त धूपकाले में स्कार्सिटी से सफ़र होती है. तो एक बार अकोला सिटी को बाय सप्लाइंग वाटर बाय ट्रेन से वाटर सप्लाई करके लोगों की जान बचाई थी एंड फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट. तो इन दिस वे प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन. देन सेकंड एडवांटेज इज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन. It helps
increasing crop yields nearly 2 to 4 times। अगर इरिगेशन है तो साल में 2 या 4 बार आप फसल ले सकते हैं और इसी तरीके से फसल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द फ्लड कंट्रोल। इरिगेशन स्ट्रक्चर्स लाइक रिजर्वायर्स detain floods and thus reduce destruction. By constructing irrigation projects, divert excess rain in irrigation reservoir and detain floods and thus reduce destruction. बाढ़ को काबू में करना मीन्स फ्लड कंट्रोल। एक्सेस रेन वाटर जो है वो रिजर्वायर में सप्लाई करना, इस तरीके से आप फ्लड से कंट्रोल कर सकते हैं एंड रिड्यूस द डिस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट इज द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द प्रोजेक्ट्स डिजाइन फॉर इरिगेशन कैन आल्सो बी डिजाइन फॉर पावर जनरेशन। जो भी प्रोजेक्ट अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसमें आप जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर सकते हैं। अगेन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्सो इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई आल्सो। अगेन एडवांटेज ऑफ इरिगेशन इज इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन मतलब क्या होता है? बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग कैनल्स एंड यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बड़े बड़े कैनल कंस्ट्रक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज़ करना बाय यूजिंग बोटिंग। नेक्स्ट इज द टू इंक्रीज इन फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फैसिलिटी कैसे बढ़ेंगी? बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड्स बिसाइड कैनल्स एंड दीज रोड्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीपल्स एक्सेट्रा एंड हेल्प्स टू इंक्रीज इन फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कैनल्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद में साइड में जो रोड बनता है उसको सर्विस रोड बोलते हैं और उसका यूज़ आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप टू इंक्रीज इन फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट disadvantage of irrigation is irrigation may result in colder and damper climate causing disease like malaria। जहाँ पर भी इरिगेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कोल्डर एंड ठंडा एंड डैम्पर मीन्स ह्यूमिड रहता है, उसके वजह से मलेरिया जैसे रोग होने की संभावना होती है। सेकंड इज द वाटर लॉगिंग। ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग मीन्स दलदल जैसे परिस्थिति निर्माण हो सकती है। नेक्स्ट इज द सॉल्ट एफ्लोरेसेंस मीन्स क्षार बनना या नमक जैसे बनना। ड्यू टू वाटर लॉगिंग सॉल्ट एफ्लोरेसेंस ऑकर्स विच डैमेजेस लैंड डैमेज हो सकता है उससे। देन नेक्स्ट इज द टेंडेंसी टूवर्ड्स ओवर इरिगेशन। अगर ज़्यादा पानी अवेलेबल है तो अपनी टेंडेंसी बन जाती है, मानसिकता बन जाती है कि ज़्यादा वाटर यूज़ करने की एंड इनडायरेक्टली वेस्टेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज़ द एक्सेस ह्यूमिडिटी। जहाँ पर भी रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट होते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कोल्डर रहता है और डैम्पर रहता है, उसके वजह से वहाँ पे एक्सेस ह्यूमिडिटी होती है। तो आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। देन summary of this lecture. In this lecture we learn definition of irrigation, again factors, necessities of irrigation, classification of irrigation on the basis of purpose and surface, also advantages and disadvantages or ill effects of irrigation. Okay, thank you.